Hello everyone, let's continue the last topic of the chapter, biological classification, viruses, virions, lichens. So, as you know, the viruses are the link between living and non-living thing. Why they are not living, why they are not considered as non-living, they are the link between two. This we have discussed in detail. Okay, so this is, a typical structure of a virus, wherein you see this is the caspid, it's written caspid, and this is the RNA. Okay. So हमें पता है कि वायरस सेल से नहीं मिलके बना होता है. वायरस इज एन ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म, राइट. तो अगर ये सेल से नहीं बना तो ये किससे मिलके बना है, हमें पता है. इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन. तो जो बाहर का कवर होगा बॉडी का, दैट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, एंड दे हैव अ जेनेटिक मटीरियल either of RNA, either of DNA. So here the virus which is showing in the diagram is the tobacco mosaic virus, TMV. The short form of it is TMV. तो आप देख सकते हैं बाहर ये प्रोटीन का कवर है. अब ये जो छोटे छोटे यूनिट्स हैं, these small units, all these are made up of protein, and these small units of protein which makes the cover of the the virus, the coat of the virus. So we can even call it the protein coat. So this small unit which makes the protein coat is called as capsid. So this protein small unit are the capsid. Inside this, the genome or the gene or the genetic material is there, either the RNA, either the DNA. So बच्चों, कोई भी वायरस ऐसा नहीं है जिसमें दोनों जेनेटिक मटेरियल पाए जाते हैं. लाइक अदर ऑर्गेनिज्म, सबके पास जेनेटिक मटेरियल RNA, DNA दोनों होते हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, प्लांट्स. But this tobacco mosaic virus, which is example is given here, has genetic material RNA. As you can see, there is no DNA. Similarly, the virus is having either DNA, either RNA. Okay, तो एक genetic material plus protein का coat. Fine. So this is the tobacco mosaic virus. उसके बाद एक हम स्ट्रक्चर यहाँ देखते हैं. वन मोर स्ट्रक्चर इज गिवन, बट इट्स नेम इज गिवन बैक्टीरियोफेज. इट इज नॉट something new. It is the virus, but why it is called as bacteriophage? Because this is the virus which can infect the bacterial cell. तो वो वायरस जो बैक्टीरिया तक को इन्फेक्ट कर सकते हैं, such viruses are called as bacteriophage. You see the structure of bacteriophage is little different. It's different means just the structure is different, otherwise the unit and the protein and the genetic material all are same. So you can see the head, the collar, the tail, this all is the protein part. Fine. And inside this protein part there is genetic material. So this is the bacteriophage, again a virus which can infect the bacteria, and this is the virus which can infect the tobacco leaves. तंबाकू या टोबैको की लीव्स को ये कर्ल कर देता है, और जिससे उसकी क्रॉप को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है. तो बच्चों, किस प्रकार से वायरसेस की डिस्कवरी हुई, how they came into existence, so that's we going to discuss here. Okay, so start from here. The name virus, that means venom. तो बच्चों, वायरस नेम आया है venom. venom का मतलब हो poisonous. Okay, so viruses are poisonous because why they are poisonous और toxic इन्हें बोला गया है क्योंकि ये हमेशा डिजीज फैलाते हैं. Sometimes deadly diseases, like आजकल आप देख रहे हैं the COVID-19 and the pandemic situation में वायरस कितनों की लाइफ ले चुका है, and this virus is becoming very very fatal. So that is why the viruses is given name venom, poisonous. Okay, fluid which was given Pasteur, D.J. Avinovsky. So ये जो नेम इसका दिया है venom या वायरस, जो कि वेनम से आया है, ये दिया है पॉस्चर ने. ठीक है बच्चों, यहाँ पे बहुत सारे साइंटिस्ट के नाम आएंगे, आप सबको अंडरलाइन करते रहना. तो पहला नेम आ गया पॉस्चर का. तो ये जो नाम है वायरस, इट वाज गिवन बाय पॉस्चर, एंड देन अगेन एक और साइंटिस्ट, उनके बारे में पढ़ते हैं, D.J. Avinovsky. D.J. Avinovsky in 1892 recognized that certain microbes as causes the organism of the mosaic disease of tobacco. This lines means कि D.J. Avinovsky ने देखा कि जो मोज़ेक डिजीज है, मोज़ेक डिजीज क्या होता है कि जब लीफ होती है, उसके पत्ते जो होते हैं, लीफ जो इस तरीके से फैली हुई होती है, वो इस कर्ल हो जाती है, यानी लीफ के दोनों कॉर्नर्स कर्ल हो जाते हैं, और लीफ का जो एक्सपेंडेड और लेमिना है, जो एक्सपेंडेड उसका पार्ट है, वो सारा कर्ल हो जाता है, जिससे उसको नुकसान होता है. तो उसको बोलते हैं मोज़ेक डिजीज. तो
मोज़ेक डिजीज़ ऑफ टोबैको, देखा कि डिजीज़ हो रही है मोज़ेक डिजीज़ इन टोबैको, ये किसकी वजह से हो रही है। तो उन्होंने क्या करा कि ऐसे जो डिजीज़ वाली लीव्स थी, उन डिजीज़ वाली लीव्स का एक फ्लूइड तैयार करा उनको घोल कर, और फिर उसको बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर से छाना, और उसके बाद जो नीचे फ्लूइड आया विच वॉज सपोज टू बी प्योर, जो भी, क्योंकि बैक्टीरिया वगैरह रहे होंगे वो फिल्टर पे चले गए होंगे, उन्होंने फिर इस चीज़ को लेकर उस फ्लूइड को किसी और हेल्दी लीफ पे लगाया, पर उस हेल्दी लीफ पर भी वो डिजीज़ हो गई। इसका मतलब कुछ तो ऐसा था जो कि बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर से भी पार हो गया। सो इट मीन्स दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म विच वॉज स्मॉल, द बैक्टीरिया was passed through the bacterial filtrate was smaller than the virus. Okay, so उस फ्लूइड को उन्होंने नाम दिया कॉन्टेजियम विवियम फ्लूइड, जिसका नाम होता है इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। ओके, सो डीजे वाइनोवास्की ने रिकॉग्नाइज करा कि कुछ माइक्रोब हैं जो कि मोज़ेक डिजीज टोबैको की कोज की फैला रहे हैं। दीज वर फाउंड टू बी स्मॉलर देन द बैक्टीरिया, क्योंकि वो किसको क्रॉस कर गए, बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर को भी क्रॉस कर गए। इसके बाद M.W. बिजनरिक, एक और साइंटिस्ट थे, डच साइंटिस्ट, इन्होंने डेमोन्स्ट्रेट करा कि जो एक्सट्रैक्ट बच्चों, जो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि उस इन्फेक्टेड लीफ का फ्लूइड तैयार करा और फिर उसको बैक्टीरिया प्रूफ से छान लिया। उसके बाद भी जो फ्लूइड था उसमें वायरस मिला, यानी कि कुछ तो ऐसा था विच वॉज स्मॉलर देन द बैक्टीरिया, क्योंकि वो फ्लूइड इन्फेक्शियस था, जिसको भी हेल्दी पत्तों पे लगाया जा रहा था सबको डिजीज हो जा रही थी। दैट इज वाई इट इज नोन एज कंटेजियम बेबियम फ्लूइड, यानी कि इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। बाद में W.M. स्टेनले ने 1935 में ये शो करा कि दैट दीज वर द वायरसेस। ओके, सो दीज वायरसेस विच वर स्मॉलर देन द बैक्टीरिया could be crystallized and the crystal consist largely of protein। तो उन्होंने देखा वो छोटे ऑर्गेनिज्म क्या हैं, वो छोटे ऑर्गेनिज्म वायरस जो कि प्रोटीन के पार्टिकल्स हैं। दे आर इनर्ट आउटसाइड, मीन्स जब वो बॉडी के बाहर रहेंगे दे आर इनएक्टिव, और जब वो किसी भी स्पेसिफिक होस्ट सेल में जाएंगे वो उसी के ऊपर रहेंगे, ऑब्लिगेट पैरासाइट बन जाएंगे, एंड उसके ऊपर रहकर उसकी मशीनरी, उसकी मेटाबॉलिज्म, उसकी केमिकल रिएक्शंस को टेक ओवर कर लेंगे, इंटरफेयर कर लेंगे, और वही मशीनरी अपना लेंगे जिसको वो इन्फेक्ट करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे बहुत सारे साइंटिस्ट के नाम आए थे। सबसे पहले स्टार्टिंग विद द पास्चर, डीजे वाइनोवास्की, एंड देन M.W. बिजनरिक, एंड देन इन लास्ट हमने देखा स्टेनले। सो सबका अपना अपना कंट्रीब्यूशन है इन द डिस्कवरी ऑफ द वायरसेस। अब वायरसेस का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो बहुत सिंपल है। वायरसेस के स्ट्रक्चर में एक तो प्रोटीन होगा बच्चों, फाइन। प्रोटीन में छोटी छोटी यूनिट्स होंगी, जैसा भी हमने देखा, दीज स्मॉल यूनिट्स आर कॉल्ड एज द कैस्पिड। इनकी जो शेप होती है वो अलग अलग हो सकती है। यू सी द शेप ऑफ द प्रोटीन्स इज लिटिल डिफरेंट हियर एंड यू सी इट्स टोटली डिफरेंट। तो कभी पॉलीहेड्रल हो गया या डिफरेंट टाइप की शेप्स हो गई। प्रोटीन की छोटी छोटी यूनिट्स एक कंप्लीट कवर बना रही हैं प्रोटीन का, उसके अंदर कोई भी जेनेटिक मटेरियल मिल रहा है। सो बच्चों यहाँ पे हम देख रहे हैं they contain genetic material that could be either RNA or DNA. Please underline this. No virus can contain DNA and RNA. They have either RNA or either DNA. No virus contain both RNA and DNA. Okay. A virus is a nucleoprotein. Why it is named as a nucleoprotein? Because they have the genetic material, यानी कि protein. Nucleo means nucleic acid, and DNA and RNA are known as nucleic acid. Fine. सो या तो उनके पास सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होगा, फाइन, या फिर उनके पास सिंगल और डबल स्टैंडर्ड आरएनए और डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा, फाइन। तो मोस्टली ये जो वायरसेस होते हैं, आरएनए वायरसेस, ये प्लांट में डिजीज कॉज करते हैं, मगर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरसेस एनिमल्स में भी डिजीज कॉज करते हैं। डीएनए वायरसेस एनिमल्स में डिजीज कॉज करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी वायरसेस हैं जिनमें डीएनए के होने के बावजूद वो प्लांट्स में डिजीज कॉज करते हैं। सो बच्चों, आरएनए वायरस कैन कॉज डिजीज इन द प्लांट्स एंड सिमिलरली दे कैन कॉज डिजीज इन द एनिमल्स एज वेल। जैसे पोलियो वायरस, उसमें आरएनए होगा। एड्स का वायरस, उसमें सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होगा। एंड अभी आजकल जो हम देख रहे हैं कोविड-19, इसमें भी इसका भी जेनेटिक मटेरियल आरएनए है।
तो बच्चों देर आर सो मेनी डिजीज विच आर कॉज्ड बाय वायरसेस। एड्स आपको पता है, इन्फ्लुएंजा आपको पता है, जीका वायरस का नाम आप लोगों ने सुना होगा। नाउ दिस न्यू इज कोविड-19। सो देर आर पोलियो डिजीज इज ऑल्सो कॉज्ड बाय वायरसेस। इसके अलावा प्लांट्स में डिजीज कॉज करते हैं मोजेक वायरस, लीफ रोलिंग, लीफ रोल हो जाना, लीफ का कर्ल हो जाना, येलोइंग, लीफ का येलो हो जाना, उसका क्लोरोफिल डेड हो जाना, वेन क्लियरलिंग, ड्वार्फिंग यानी कि प्लांट की हाइट छोटी रह जाना, ड्वार्फ रह जाना, स्टंट ग्रोथ, प्लांट की ग्रोथ ना होना। सो देर आर नंबर ऑफ दी diseases which are caused by the viruses.